speakers, Ms. Manali and Mrs. Ashwini. Hello, ma'am. Hi, Manali. Hearty welcome. How are you doing? Yes, ma'am. Good, ma'am. Thank you. And Ms. Ashwini, are you here? Good evening, Hi, guys. Ashwini. Hi. Hi. Welcome to the webinar session, Ashwini. All right. So the speakers are here. Let's move ahead for the session today. So hearty welcome to all the participants here. Specifically, we have to thank you for your time as well as for your patience of the wait time. So without wasting much time, let us go to the introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Basically, we are into 4 different sectors, and by a couple of months, we have added up different sectors due to the customers' demand. So what are the 4 different sectors? Let's just take a glance here. So we are into Tally, an accounting software, and now which is shortly going to convert to Tally Prime. Yes, the excited part is today we are also going to speak about Tally Prime. All right, so Tally is one of the most important and backbone of Rajlakshmi Solutions Private Limited, and the next is SAP Business One. We completely handle the CRM key for every business solutions, and Bittrex ERP. SAP is an ERP. Bittrex CRM, which is again a multinational software which is used by worldwide, and we are just enjoying working with Bittrex 24. And we are with Skill India, that is again a government project wherein we specifically work for the education of children. So these are the 4 different sectors. And what are the 2 sectors we added up? That is really a very exciting thing to know. As per the market demand, remote working has become a very, very valuable part in this scenario due to pandemic situation. So as of now, I can say the remote working on to the demand of customers, we have added up the sectors, that is Acronis, a complete backup software, and Cloud Desktop. The 2 backup softwares which we added onto the demand of customers as well as market. Well, this is an introduction, and let us now go what we do exactly. I took all the software's name as usual. So what we do is we are basically into sales, support, customization, and advisory, and solution provider also. For any kind of organization, if due to the pandemic situation or any other distracted situation, we are here to support you 24/7 on 100% to uplift your business and the business solutions to make your work more comfortable. Well, this is what we do exactly. And now moving towards the topic. This is really a very important topic, and just to highlight you, I would wish to specify certain things. This call is getting recorded, and we will be updating this call into the YouTube channel. So the people who joined lately and the people who missed any kind of points or any kind of distraction in understanding the concepts, you can go to our YouTube channel, subscribe our YouTube channel, please, and follow the webinar video. And even we have taken up many videos before also. So you can just check out the videos into our YouTube link. The YouTube link and details will be shared to you in the comment section. Mr. Bhagwati? Yes. Yeah. Mr. Bhagwati, request you to please share the details, contact details, and YouTube channel details to the audience. Yeah? Yes. Thank you. All right. So this is what like a request from you guys, and request you to please give a space to the speakers. And if you have any doubts or any questions, please आप comment box में वो doubts या questions को type कर दीजिएगा, ताकि end of the session हम एक conversation session करेंगे, तो उस time पे हम आपके questions के ऊपर discuss जरूर कर सकते हैं. All right. Now coming to the session, that is data security capabilities. Wow, the topic itself is a very, very important source, I could say, because data is our wealth, we can say, and data is everything for any organization or for any individual. So now let us see on to the topic that how important data is and how flexibly you can secure your data with the support of Tally software, and now which has been upgraded to Tally Prime, and there are still many more features onto this. So Ms. Manali, are you ready with your presentation? Yes, ma'am. Pleasure, Ms. Manali. Ms. Manali, introduce yourself, and then you can start up with your presentation. It's over to you completely. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Yeah. Hello, everyone. Good evening, all.
A hearty welcomes to all in our today's session. So basically, we'll move on to our today's topic, that is data security and capabilities. So first, I will share my screen here. Manali, did you get the screen sharing option? Yes, ma'am. Okay. I hope it's visible. Yes, it's visible, Manali. Please proceed. Okay. So, hello everyone. This is our Raj Lakshmi family. Welcomes all in our family. So next, this is our company logo, which includes what we exactly do. That is already explained by Deepa ma'am. So now we'll see what is data security. First हम लोग data security क्या है exactly वो देखेंगे. Like अभी के सिचुएशन में या फिर सिनारियो में हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और उससे भी ज्यादा उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. सो डेटा की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है सारे ओनर्स के सामने. सो बेसिकली जो डेटा रहता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहता है या फिर उसका जो इंफॉर्मेशन है वो हमें बहुत अच्छे से सेफ रखना चाहिए और इवन उसका कहीं मिसयूज ना हो. तो ये सब के लिए हमें डेटा का सिक्योरिटी कैसे रखना है. सो टैली हमें ये केस में कैसे हेल्प करेगा. टैली ने एक बहुत ही अच्छा फीचर्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी के रिगार्डिंग. लाइक आपका जो डेटा है वो कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर सकते हो एक पासवर्ड प्रोवाइड करके और वही पासवर्ड के अंदर आप कंप्लीटली मल्टीपल लेवल्स क्रिएट कर सकते हो या फिर यूजर वाइज सेटिंग्स आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. यानी कि पर्टिकुलर जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहता है. सो डिपार्टमेंट वाइज यूजर वाइज आप पर्टिकुलर वो यूजर को एक्सेस दे सकते हो ताकि कोई अदर पर्सन दूसरे डेटा में जाके वहाँ पे कोई चेंजेस ना कर सके. लाइक अभी ये डेटा सिक्योरिटी हमें टैली से कैसे मेंटेन करना है वो हम लोग आगे प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे. सो ये डेटा सिक्योरिटी के अंडर कुछ पॉइंट्स आते हैं लाइक जैसे हमारा बैकअप हुआ, देन यूजर वाइज सिक्योरिटी कंट्रोल्स, टैली वॉल्ट, टैली ऑडिट, एनहांस पासवर्ड पॉलिसी एंड ईमेल ऑफ डॉक्यूमेंट. सो ये ऑप्शंस एग्जैक्टली क्या है वो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इंडिविजुअली सबका ब्रीफ देखेंगे. सो फर्स्ट इज मैनुअल बैकअप एंड रिस्टोर. व्हाट इज बैकअप. बैकअप होता क्या है एग्जैक्टली और बैकअप हमें क्यों लेना चाहिए. लाइक अगर सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी फर्म में सपोज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर डेटा में कुछ इश्यूज आ रहे हैं या फिर डेटा करप्ट हुआ है और वो डेटा रिकवर नहीं कर पा रहे तो वो केस में आप क्या करोगे. लाइक अभी सपोज हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी सिचुएशन आती है लाइक फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो या फिर नेचुरल कैलेमिटी हो ये सब हमें बता के नहीं आता है. सडनली कुछ भी क्या भी हो सकता है यहाँ पे. सो ये केस में हम लोग अपना सेफ्टी कैसे रखेंगे. सो बेसिकली अगर सपोज आपने आपके डेटा का एक एडिशनल कॉपी लेके रखा हुआ है या फिर उसका बैकअप करके रखा है तो वो डेटा आप यूज कर सकते हो और आपका जो वर्किंग है वो उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो. सो टैली ने हमें एक बहुत ही अच्छा बैकअप का फीचर प्रोवाइड किया है. वो फीचर के साथ आप डेली बेसिस पे आपका बैकअप ले सकते हो और वो पर्टिकुलर बैकअप आप कंप्लीटली जब भी आपको रिक्वायर हो वो आप रिस्टोर कर सकते हो. और इसके साथ और भी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी यहाँ पे. लाइक अगर किसी को मैनुअल बैकअप लेना पॉसिबल नहीं है तो उस केस में हम लोग ने ऑलरेडी ऑटो बैकअप मॉड्यूल करके बनाया हुआ है. अगर सपोज किसी को रिक्वायर है तो आप कनेक्ट कर सकते हो. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज यूजर वाइज सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स. जैसे कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम लोग यूजर वाइज प्रॉपरली टैली में सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे कैसे रहेगा कि कंप्लीटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के लिए हम लोग एक यूजर बनाते हैं और उसके अंडर मल्टीपल लेवल्स क्रिएट करते हैं. ठीक है. सो इसमें कैसे होगा कि पर्टिकुलरली 3 स्टेप्स रहते हैं. फर्स्ट आपको सिक्योरिटी एनेबल करनी है, देन उसके अंदर आप डिफरेंट लेवल्स क्रिएट करोगे और वो लेवल्स के अंदर यूजर्स बनाओगे. सो ये हमें प्रैक्टिकली कैसे करना है हम लोग अभी आगे देखेंगे. इसी के साथ साथ ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो
आईडी पासवर्ड है हम लोग बोल सकते हैं, वो एवरी यूजर को कुछ ना कुछ कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से उसको परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये जो प्रोसेस है सिक्योरिटी का, ये सिंपल आईडी एंड पासवर्ड है। अगर आप आपके डेटा को और भी कॉन्फिडेंशियल बनाना चाहते हो तो उसमें आप टैली वोल्ट पासवर्ड भी ऐड कर सकते हो। सो व्हाट इज टैली वोल्ट? तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे टैली वोल्ट। टैली वोल्ट ये एक ऐसा फीचर है टैली ERP9 का जो आपको कंप्लीटली डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियली आप मेंटेन कर सकते हो इसमें। ये जो वोल्ट पासवर्ड है आपको जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हो तो क्रिएशन के टाइम पे ये ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा, तो वहां से वो आपको एनेबल करना है। सो जब भी आप वो ऑप्शन एनेबल करोगे तो जब भी हम लोग अपनी कंपनी सिलेक्ट करते हैं, लिस्ट ऑफ कंपनीज जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वहां पे आपके कंपनी का नेम और उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो रिमूव हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। लाइक वहां पे कुछ ना कुछ स्टार्स मार्क्स आते हैं, तो वो कैसे दिखेगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ और एक इन्फॉर्मेशन में देना चाहूंगी, अगर इन केस सपोज आपने टैली वोल्ट एक्टिवेट किया है डेटा में, तो अगर वो पासवर्ड हम लोग बाय मिस्टेकली भूल जाते हैं या फिर फॉरवर्ड करते हैं तो वो पासवर्ड हम रीसेट नहीं कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टैली ऑडिट। व्हाट इज टैली ऑडिट? अभी बेसिकली कैसे रहता है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें पता होना चाहिए कि मेरा यूजर एग्जैक्टली दिन में कितने एंट्रीज कर रहा है, या फिर कौन सी एंट्री में वो एडिट कर रहा है, या फिर कहाँ पे वो अल्टरेशन कर रहा है, वो डिटेल्स हमें चाहिए। तो टैली ऑडिट फीचर एनेबल करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट रिपोर्ट आपको मिलेगा कि पर्टिकुलर यूजर ने कहाँ पे कौन से चेंजेस किए हैं, या फिर दिन में उन्होंने कितने एंट्रीज पास की है। इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को एक कंप्लीट आइडिया भी आ जाता है या फिर ट्रैक भी रहता है कि मेरा पर्टिकुलर बंदा दिन में क्या कर रहा है, या फिर सपोज पर्टिकुलर वो एक एंट्री बार बार जाके अल्टर कर रहा है तो उससे कहाँ पे दिक्कत आ रही है या फिर उसपे कहाँ पे गैप है, वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और इवन इसके साथ साथ आपके स्टाफ में अगर कुछ डिस्प्यूट्स है कुछ एंट्रीज के रिगार्डिंग, वो भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना एनहांस पासवर्ड पॉलिसी। अभी एनहांस पासवर्ड पॉलिसी क्या है? अभी हम लोग इतना बोल रहे हैं कि पासवर्ड डेटा को आईडी पासवर्ड देना है, आईडी पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड की पॉलिसी क्या है? पासवर्ड पॉलिसी ये एक ऐसा फीचर है टैली में, लाइक इसमें कंप्लीट राइट्स एडमिनिस्ट्रेटर को रहता है। जो मेन अपना यूजर रहता है उसे वो पॉलिसी सेट करने के कंप्लीट राइट्स रहता है। तो ये पासवर्ड क्रिएट करने के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहां पे कंप्लीटली एक पॉलिसी सेट करते हैं। पॉलिसी यानी कि उसके अंडर क्या आता है, पासवर्ड का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, लाइक उसमें मिनिमम कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग जो देते हैं वो कितने होने चाहिए। और सेकेंडली इसके साथ साथ जो पासवर्ड का एक्सपायरी है, यानी कि सपोज आप चाहते हो कि ये हमारा पासवर्ड है वो ओनली फॉर 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए, तो उतना वो ड्यूरेशन वहां पे मेंशन करके उतने टाइम तक वो आप पासवर्ड यूज कर सकते हो। सो ये टैली में कैसे मेंटेन करना है अभी हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। सो व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज ईमेलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट्स। ईमेल अभी सब लोग ने सुना रहेगा। हम लोग अपना ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो इनवॉइसेस है वो अपने कस्टमर को ईमेल करते हैं। सो टैली में हम लोग ईमेल कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कोई आपका इनवॉइस है, सेल इनवॉइस है, या फिर आपको किसी कस्टमर को रिमाइंडर लेटर भेजना है आउटस्टैंडिंग के रिगार्डिंग, या फिर कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट मेल करना है, तो आप टैली से विद इन 1 क्लिक वो कस्टमर को ईमेल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम यहाँ पे बहुत सेव होगा। लाइक हम लोग जनरली कैसे करते हैं, अपना ईमेल ओपन करते हैं, देन ईमेल आईडी डालते हैं, देन मैसेज ड्राफ्ट करते हैं, देन अटैचमेंट सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें हमारा काफी सारा टाइम जाता है। सो टैली में 1 क्लिक में आप आपका ईमेल सेंड कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर सपोज आपने प्रिंटिंग में नंबर ऑफ कॉपीज कुछ सिलेक्ट करके रखे हैं, लाइक 3 कॉपीज होने चाहिए, 2 कॉपीज होने चाहिए एज पर कंपनी पॉलिसी, तो जितने कॉपीज आपने प्रिंटिंग के टाइम पे सिलेक्ट किए हैं वही सेम कॉपीज आप ईमेल में मेल कर सकते हो। और सेकंड पार्ट इसमें ये है ऑर्गेनाइजेशन के साइड से, लाइक जहाँ पे भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है, सो उनके यहाँ पे जो कंपनीज का या फिर एम्प्लॉइज का जो पे स्लिप बनता है वो भी हमें एम्प्लॉइज को देना पड़ता है, तो वो पे स्लिप भी आप अपने कस्टमर को विद इन 1 क्लिक ईमेल कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपका जो स्टेशनरी का कॉस्ट है और इवन जो अपने पेपर है वो हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सेव कर सकते हैं। सो इसमें हम लोग अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और पेपर भी सेव कर सकते हैं। सो ये था हमारा कंप्लीट थियोरेटिकल नॉलेज। सो ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप नोट करके ले सकते हो। और अभी आगे हम लोग देखेंगे कि हमें प्रैक्टिकली कैसे मेंटेन करना है।
Miss Manali, it was really a pretty cool presentation जहाँ पे बहुत सारी details हमें पता लगा theoretically. So now अब हम एक काम करते हैं. Let us go to the other speaker. So Mrs. Ashwini, are you here? Oh, yes, ma'am. हाय अश्विनी. अश्विनी, Hi. मनाली ने तो पीपीटी रन कर दिया, तो आई जस्ट वांट आप कुछ चीजें इसके ऊपर एक रिकैप ले लीजिएगा सिंपल सा शॉर्टली, वेरन उसके बाद में हम चलते हैं लाइव डेमो के ऊपर. ऑलराइट? Yes, ma'am. यस, इट्स ओवर टू यू. कि अभी हमारा टॉपिक है डेटा सिक्योरिटी एंड कैपेबिलिटीज. इसका मतलब हमारा डेटा कहाँ तक सिक्योर हो सकता है, कि टैली कहाँ तक कैपेबल है कि हमारा डेटा सिक्योर करने में. तो ये फीचर ऑलरेडी टैली में बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है. बट कैसे है कि कोई कोई कस्टमर है, फिर बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनको ये ऑप्शन पता ही नहीं है कि हम लोग टैली में डेटा सिक्योरिटी भी मेंटेन कर सकते हैं. तो इसके लिए हम लोगों ने ये आज टॉपिक यहाँ पे लिया हुआ है. जैसे कि उसमें आता है मैनुअल बैकअप एंड रिस्टोर. ये सब मैनुअली हो गया. जैसे कि अभी मनाली ने एक गुड एग्जांपल दिया एक्सीडेंट का. अभी हम लोगों को तो पता नहीं होता है कि एक्सीडेंट एडवांस में तो नहीं पता है कि एक्सीडेंट मेरा होने वाला है. फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस तो निकाल के ही रखते हैं. सेम डेटा बैकअप के रिलेटेड भी आपको यही रूल एप्लीकेबल होता है. तो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है डेटा में, तो आपके पास बैकअप रहेगा तो आपके लिए वो बेटर ही रहेगा. देन फिर इसमें एक अच्छी चीज है कि मैनुअल बैकअप लेना हम कभी कभी भूल जाते हैं. और अगर एट दैट टाइम डेटा में कुछ प्रॉब्लम आया है तो आप क्या करेंगे. तो इस केस में आपको और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमारी कंपनी ऑटो बैकअप का मॉड्यूल भी प्रोवाइड करती है. तो आप चाहो तो वो परचेस कर सकते हैं. उसमें 2 टाइप्स आते हैं, लोकल बैकअप वाला भी है और क्लाउड वाला भी है. तो आपको जो फ्लेक्सिबल लगता है आप उसमें वो ले सकते हैं. देन यूजर वाइज सिक्योरिटी, ये एक मल्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड फीचर है. जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रहते हैं, तो ओनर फाइंड आउट नहीं कर सकते है कि मेरे कौन से एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं. तो इसमें हम लोग ये लेवल देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है ये. देन इसके बाद में है टैली वॉल्ट वाला. टैली वॉल्ट ये भी एक गुड फीचर है टैली का. बस इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टैली वॉल्ट का पासवर्ड मेंटेन करते हैं तो वो आपको याद रखना है या फिर कहीं पे भी नोट करके रखना है. अगर आप टैली का पासवर्ड भूल जाते हैं टैली वॉल्ट का, तो ये आपका डेटा इनएक्सेसिबल हो जाता है और उस केस में हम भी कुछ नहीं कर सकते. देन उसके बाद है टैली ऑडिट का. मनाली मैडम ने बताया टैली ऑडिट का भी फीचर, मल्टी यूजर्स हो या फिर सिंगल यूजर में 2 लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है. क्योंकि कैसे होता है, अगर एम्प्लॉइज कोई भी एंट्री पास कर लेते हैं फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं मैंने अल्टर नहीं किया, मैंने एंट्री पास नहीं किया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो अगर हम यूजर वाइज वहाँ पे लेवल्स क्रिएट कर लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर को तो ऑटोमेटिक रिपोर्ट वहाँ पे जनरेट हो जाएगा कि ये एम्प्लॉय अल्टर कर रहा है, ये एम्प्लॉय डिलीट कर रहा है या फिर कुछ अमाउंट चेंजेस कर रहा है. तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट विजिबिलिटी हो जाती है उस केस में. तो इससे कैसे आपके जो भी एम्प्लॉयज के अंदर में कोई भी डिस्प्यूट रहेंगे तो वो हम लोग उसमें अवॉइड कर सकते हैं. बाद में पासवर्ड पॉलिसी है. पासवर्ड पॉलिसी में भी हम पासवर्ड पॉलिसी भी एक गुड फीचर है. जैसे कि अभी हम लोग कोई इजी पासवर्ड दे देंगे तो कोई भी उसको रिट्राइव कर सकता है. तो इसमें हम लोग अगर नंबर्स देते हैं, अल्फाबेट देते हैं, कैरेक्टर्स देते हैं, तो कैसे होता है कि हमारा डेटा ज्यादा सिक्योर रहेगा. तो कोई भी इजी वे से वो पासवर्ड आपका ब्रेक नहीं कर पाएगा. इसके लिए ये पॉलिसी आपको यूज करना है. देन ईमेलिंग भी एक अच्छा फीचर है. इसमें आप जो कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनको ये सैलरी स्लिप हर एक को देना पॉसिबल नहीं होता है. तो उसके लिए भी ये गुड फीचर है. कोई रिमाइंडर्स लेटर है, कोई इनवॉइसेस है इस केस में. और इस केस में भी ईमेलिंग का अगर आपको
फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट भी आप मेल कर सकते हैं। आपको कभी कभी याद नहीं रहता है कि हम लोग ये भूल गए कि ये कस्टमर को हम लोगों को आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मेल करना था। तो उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास ऑटो मेलिंग का एक मॉड्यूल अवेलेबल है, तो उसमें आपको मैन्युअली करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपके पार्टी को सेंड हो जाएगा। तो ये सब चीजें कैसे करना है टैली में, तो ये अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली सेशन में। थैंक यू मिस अश्विनी, प्लेजर टू सी दिस अश्विनी। बहुत अच्छा आपने भी अपना जो भी टिप्स है बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मिस मनाली, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर योर स्क्रीन फॉर लाइव डेमो। तो यहाँ पे यस, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे अश्विनी ने बताया, एक्सीडेंट्स आर अनइन्फॉर्म्ड गेस्ट, तो हमें उस गेस्ट से जरूर बच के रहना है। सो नाउ इट्स ओवर टू द मनाली फॉर लाइव डेमो। यस प्लीज। ओके मैम, माय स्क्रीन इज विजिबल? यस मनाली, इट्स विजिबल। ओके, थैंक यू। सो अभी जस्ट हम लोग ने कंप्लीट थियोरेटिकल पार्ट देखे हैं। सो अभी हम लोग लाइव जाएंगे इसमें। अभी फर्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे था कि जैसे कि हमें डेटा का बैकअप कैसे लेना है। हम लोग अभी इतना बोल रहे हैं कि अपना सिक्योरिटी डेटा का रखना चाहिए, तो वो बैकअप हम लोग कैसे लेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इन गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे टैली ने हमें राइट साइड में ऑप्शन दिया है ऑल्ट F3 कंपनी इन्फो। सो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कंपनी इन्फो में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैकअप का ऑप्शन हमें यहाँ पे टैली ने दिया है। इसके ऊपर अगर हम लोग सपोज क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स क्या होता है? सोर्स यानी कि आपका ओरिजिनल डेटा जिस फोल्डर में आपने रखा है उसका पाथ वहां पे आपको पेस्ट करना है। एंड नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी कि पर्टिकुलर कौन से फोल्डर में आपको आपका बैकअप लेना है। लाइक अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है उसका पाथ यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, लाइक टैली बैकअप। आज का डेट हम लोग डाल देते ताकि हमें मोर क्लियरिटी आ जाएगा कि डे बाय डे हमारा बैकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल्स कंपनी है, मोर देन वन कंपनी है, तो उसके सारे लिस्ट आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में शो हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको वन बाय वन कंपनी सिलेक्ट करनी है तो वन बाय वन कंपनीज का बैकअप ले सकते हो। अगर इन केस आपको सारे कंपनीज का बैकअप लेना है तो ऑल आइटम्स करके आप उसे सिलेक्ट करोगे। सो ये हो गया अपना बैकअप। सो विद इन वन क्लिक आप आपका डेटा का जो बैकअप है वो ले सकते हो। अभी ये जो बैकअप है इसे हमें रिस्टोर कैसे करना है। इनकेस कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर हमें किसी सीए को ईमेल करना है या फिर किसी और को भेजना है, तो वो डेटा हम लोग रिस्टोर कैसे करेंगे। ये जो बैकअप हम लोग जनरेट करते हैं ये इन टीबी के फॉर्मेट में जनरेट होता है। ठीक है, सो ये फाइल हम लोग रिस्टोर कैसे करेंगे। लाइक बैकअप के नीचे ही हमें टैली ने ऑप्शन दिया हुआ है रिस्टोर। सो रिस्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि डेस्टिनेशन एंड सोर्स। यहाँ पे भी सेम आपको करना है। डेस्टिनेशन यानी कि जो पर्टिकुलर फोल्डर में आपका डेटा आपको रिकवर करना है वो फोल्डर का पाथ या डेस्टिनेशन में दोगे, और सोर्स यानी कि जहाँ पे आपने वो बैकअप आपका सेव करके रखा है। ठीक है, सो मैं फिलहाल इसी फोल्डर में अपना बैकअप रिस्टोर कर रही हूँ। ठीक है, रिस्टोर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको वो कंपनी दिखाई देगी। सेम यहाँ पे भी मैं बोलूंगी कि अगर पर्टिकुलर आपने सारे कंपनीज का बैकअप लिया हुआ है उसमें से कोई एक ही कंपनी आपको रिस्टोर करनी है तो वो आप सिलेक्ट करके उसे रिस्टोर कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं अभी मेरा फोल्डर शेयर करना चाहूंगी कि हमारा बैकअप फाइल कैसे दिखता है और उसे रिस्टोर करने में हमें क्या रिजल्ट आता है। Manali, are you here? Yes, ma'am. Yeah. सी यहाँ पे जब भी मैंने बैकअप लिया तो बैकअप लेने के टाइम पे मेरा ये टीबी के फाइल यहाँ पे जनरेट हुआ, यानी कि टैली से जो भी आप फाइल या फिर बैकअप जो जनरेट करोगे ये टीबी के फॉर्मेट में जनरेट होता है। और इसे हम लोग ने रिस्टोर किया, तो रिस्टोर होने के बाद ये कंप्लीट एज इट इज अपना जैसे डेटा का फोल्डर है उसके जैसे यहाँ पे हमें व्यू होने लगता है। ठीक है, सो ये कंप्लीट अपना प्रोसेस हो गया बैकअप का मैन्युअली। ठीक है, सो अभी हम लोग जाएंगे आगे नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट अपना ऑप्शन था यूजर वाइज सिक्योरिटी। ठीक है, सो अभी जिनके ऑफिस में या फिर जिनके कंपनी में मल्टी यूजर यूज हो रहा है या फिर मोर देन 1 और 2 यूजर्स या फिर एम्प्लॉइज यूज कर रहे हैं, तो उन्हें अपना डेटा यूजर वाइज कैसे क्रिएट करना है।
अभी फर्स्ट यहाँ पे जब भी हम लोग कंपनी बनाते हैं तो कंपनी क्रिएट करने के टाइम पे ही हमें सिक्योरिटी का ऑप्शन वहाँ पे मिलता है। जैसे अभी गेटवे ऑफ टैली में हम लोग राइट साइड में क्लिक करेंगे, कंपनी इन्फो, ऑल्टर, ये स्क्रीन रहता है जब भी हम लोग अपनी न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। तो क्रिएशन के टाइम पे यहाँ पे हमें टैली ने ऑप्शन दिया है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, सो इसे हम लोग यस करेंगे। इसे यस करने के बाद नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि आपका जो मेन एडमिन का जो यूजर रहेगा जिसे फुल राइट्स रहेंगे वो यूजर आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है। देन ये यूजर का नेम आप आपके हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। सेम पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, देन पासवर्ड अगेन वो कंफर्म करेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये सब सेट करने के बाद आप ये स्क्रीन सेव करोगे। ठीक है, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का फर्स्ट पासवर्ड हम लोग ने क्रिएट किए जिसे कंप्लीट फुल राइट्स रहेंगे। अभी हमें उसके अंडर अलग अलग यूजर्स कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग सेम अगेन ऑल्ट F3 में जाएंगे, कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी कंट्रोल। सो सिक्योरिटी कंट्रोल में जाने के बाद हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक यूजर एंड पासवर्ड, टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड पासवर्ड पॉलिसी। सो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग उसका लेवल क्रिएट करेंगे, वो हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में। सो टाइप ऑफ सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें 4 लेवल्स दिए रहते हैं टैली ने, लाइक डेटा एंट्री, टैली.नेट यूजर, टैली.नेट ऑडिटर एंड टैली.नेट ओनर। और इसके बियॉन्ड अगर सपोज आपको आपके लेवल्स क्रिएट करने हैं डिपार्टमेंट वाइज तो आप यहाँ पे नीचे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है परचेस डिपार्टमेंट के लिए एंड सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं परचेस के यहाँ पे, सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी लेवल का नेम हम लोग ने दिया है परचेस, देन यूज बेसिक फैसिलिटी में मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री सिलेक्ट किया है। सो डेटा एंट्री हम लोग ने यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट टैली में हमें जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे लेवल क्रिएट करके दी है डेटा एंट्री की, तो उसमें कुछ बहुत सारे ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी हमें डिसअलाउड में दिए हुए हैं। सो यहाँ पे कुछ ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी है अगर सपोज आप यहाँ पे डेटा एंट्री का लेवल सिलेक्ट करते हो। सो डेटा एंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट अपना ऑप्शन आता है डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर्स। यहाँ पे आप मिनिमम कितने डेज तक आपको डेटा बैकडेटेड में लॉक करना है वो डेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कट ऑफ डेट फॉर बैकडेटेड वाउचर्स, यानी कि कौन से डेट तक आपका जो यूजर है वो एंट्रीज अल्टर नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर का डेटा जो है वो मेरे यूजर को व्यू नहीं होना चाहिए और वो अल्टर भी नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर वो फाइनेंशियल ईयर का एंड का जो डेट है वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है सेट और अल्टर रूल फॉर प्रिंट बिफोर सेव, यानी कि अगर सपोज आपके यूजर को प्रिंटिंग के ऑप्शंस देने हैं बिफोर एंट्री सेव तो वो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। और ये जो 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं अलाउ कंपनी टू कनेक्ट एंड यूज टैली.नेट ऑथेंटिकेशन, तो ये 2 ऑप्शंस हमारे जो रिमोट एक्सेस जो कस्टमर है या फिर रिमोट एक्सेस जो यूज कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। सो अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे हमें कुछ 2 पार्टीशन दिख रहे हैं, लाइक डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज एंड अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। डिसअलाउ फॉलोइंग फैसिलिटीज में आपको जो भी मतलब यूजर को राइट्स नहीं देने हैं वो सारे वाउचर्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे भी मल्टीपल लेवल्स हमें टैली ने दिया है, लाइक वो पर्टिकुलर यूजर को वो वाउचर जो है वो क्रिएट नहीं करना चाहिए तो आप यहाँ पे वो क्रिएट का लेवल सिलेक्ट करोगे, या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन अल्टर नहीं करना चाहिए तो अल्टर ओनली सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर उन्हें कुछ भी नहीं व्यू होना चाहिए वो अल्टर भी नहीं करनी चाहिए तो फुल एक्सेस के साथ आप वो लेवल सिलेक्ट कर सकते हो। सेम फॉर अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। अलाउ फॉलोइंग फैसिलिटीज में हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे कि वो यूजर को कौन से ऑप्शंस व्यू होने चाहिए। लाइक अभी मैंने ये परचेस डिपार्टमेंट के लिए बनाया हुआ है तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट उनको परचेस के राइट दिए हुए हैं क्रिएट एंड अल्टर के। सेल में मैंने खाली उनको डिस्प्ले और प्रिंट का राइट्स दिया हुआ है ताकि सेल्स में वो कुछ भी क्रिएट भी नहीं कर सकते और वहाँ पे ऑल्टरेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसी तरह आपको आपके यूजर या फिर डिपार्टमेंट वाइज आपको लेवल्स क्रिएट करने हैं और उनको राइट्स प्रोवाइड करने हैं। सेम फॉर मैंने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए किया है। अभी ये हमारे लेवल्स क्रिएट हो गए। अभी हमें यूजर कैसे क्रिएट करने हैं तो हम लोग जाएंगे यूजर्स एंड पासवर्ड्स में। यूजर एंड पासवर्ड में जाने के बाद यहाँ पे हमें सिक्योरिटी लेवल मिलते हैं जो हम लोग ने अभी लेवल्स में क्रिएट किया था। लाइक अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है परचेस, तो परचेस के अंदर जो भी मेरा यूजर नेम है यानी कि जो पर्सन है उनके नेम के थ्रू आप उनका आईडी बना सकते हो या फिर जो भी आपको नेम अलॉट करना है उनको आपको प्रोवाइड कर सकते हो। सेम फॉर पासवर्ड ऑल्सो, पासवर्ड जो भी आपको यूजर को देना है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो।
ऐसे यहाँ पे मल्टीपल जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स रहेंगे उतने यूजर वाइज आप यहाँ पे मल्टीपल्स नीचे 1 by 1 क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हमें लेवल्स कैसे बनाने हैं सिक्योरिटी के और उसके यूजर्स कैसे बनाने हैं। नेक्स्ट अपना ऑप्शन है यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी। लाइक पीपीटी में हम लोग ने देखा था कि एनहांस पासवर्ड पॉलिसी, तो वो पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है। पासवर्ड पॉलिसी में अगर हम लोग जाते हैं तो वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो रहता है। ठीक है, अगर सपोज मैं इसे एक्टिवेट कर रही हूँ, एक्टिवेट करते ही कुछ पॉइंट्स मुझे यहाँ पे हाईलाइट्स हो रहे हैं, लाइक पासवर्ड स्ट्रेंथ, पासवर्ड एक्सपायरी एंड अदर ऑप्शंस। तो पासवर्ड स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि आपके पासवर्ड जो है उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, मिनिमम कितने कैरेक्टर्स का वो होना चाहिए पासवर्ड। उसके साथ साथ अगर आपको उसमें मेंशन करना है, अपना पासवर्ड बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, तो उसमें आपको नंबर ऑफ अल्फाबेटिक कितने यूज करने हैं या फिर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कितने यूज होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर कितने यूज करने हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट अपना है पासवर्ड एक्सपायरी। सो पासवर्ड एक्सपायरी यानी कि जो पर्टिकुलर यूजर का पासवर्ड आप बनाने वाले हो वो कितने दिन तक वैलिड होना चाहिए, वो आप यहाँ पे उसके नंबर ऑफ डेज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो वो पासवर्ड उतने दिन तक वैलिड रहेगा। नेक्स्ट आता है नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायर्स। अभी 30 डेज होने को आया है और वो पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि वो यूजर को नोटिफिकेशन आना चाहिए कि उसका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, तो वो चीज भी हमें यहाँ पे टैली ने दी है। अगर सपोज ये आप ऑप्शन यस रखोगे तो पर्टिकुलर बंदे को उसका नोटिफिकेशन आएगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है कि कितने डेज के पहले, बिफोर डेज कितना उनको वो नोटिफिकेशन आना चाहिए, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, एक्सपायर होने से पहले, तो वो नंबर ऑफ डेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट है नंबर ऑफ ओल्ड पासवर्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि ओल्ड पासवर्ड में से आपको कितने पासवर्ड्स रखने हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन अपना ऑप्शन है अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस में हमें दिया है चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, यानी कि यूजर जब भी लॉगिन करेंगे उस टाइम पे अगर सपोज आप आपके यूजर को राइट्स देना चाहते हो कि उन्हें चेंज करने के लिए आना चाहिए या फिर फर्स्ट लॉगिन में ही उनका पासवर्ड चेंज होना चाहिए, तो वो अगर ऑप्शन आप यस रखोगे तो जब भी यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो वहां पे उनको पासवर्ड चेंज के लिए ऑप्शन आएगा। वो भी कब, अगर सपोज आप उनको परमिशन अलॉट करते हैं। लाइक नेक्स्ट ऑप्शन अपना दिया है अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड। अगर आप ये ऑप्शन यस रखोगे तो यूजर को कंप्लीट राइट्स रहेंगे उनके पासवर्ड चेंज करने के लिए। सो अभी तक हम लोग ने कौन सी चीजें देखी, लाइक जैसे कि बैकअप कैसे करना है टैली का, बैकअप को रिस्टोर कैसे करना है, देन सिक्योरिटी यानी कि डेटा को पासवर्ड कैसे अलॉट करना है, उसके अंडर मल्टीपल यूजर्स कैसे करने हैं, एंड पासवर्ड की पॉलिसी कैसे सेट करनी है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है टैली वर्ल्ड पासवर्ड। टैली वर्ल्ड पासवर्ड जैसे कि हम लोग ने अभी ये सारे प्रोसेस देखे, जो पासवर्ड मैंने अभी आपको बताया वो नॉर्मल पासवर्ड था। अगर आप यहाँ पे देखोगे सिलेक्ट कंपनी में, तो यहाँ पे मुझे मेरी कंपनी दिख रही है, फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पे साथ साथ दिखाई दे रहा है, इवन कि मैंने आईडी पासवर्ड दिया हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे वर्ल्ड पासवर्ड ऐड करने के बाद वहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं। अभी गेटवे ऑफ टैली से आपको कंपनी इन्फो में जाना है। कंपनी इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चेंज टैली वोल्ट। तो टैली वोल्ट में अगर मैं एंटर करती हूँ, कंपनी नेम यहाँ पे आ जाएगा स्पेसिफिक, देन न्यू पासवर्ड यानी कि आपको वोल्ट पासवर्ड क्या रखना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी यहाँ पे सेट कर देती हूँ मेरा वोल्ट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड यानी कि रिपीट न्यू पासवर्ड भी सेम जो हम लोग ने ऊपर मेंशन किया है, सेम पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है। देन इसे हम लोग चेंज करने के लिए पूछेगा तो हम लोग यस करेंगे। यस करते ही यहाँ पे अपनी कंपनी बन जाती है वर्ल्ड पासवर्ड के साथ साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे वो कंपनी का जो नेम है वो कम्प्लीटली हाईलाइट हो गया है, वहाँ पे दिख नहीं रहा है हमें, इनविजिबल हो गया है, और साथ साथ उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी यहाँ पे इनविजिबल हो गया। सो इसके साथ साथ आपका जो डेटा है आप वो मोर कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपना ऑप्शन आता है टैली ऑडिट फीचर। टैली ऑडिट फीचर हमें क्या हेल्प करता है इसमें, लाइक अगर सपोज बड़े कंपनी है जहाँ पे मोर देन 2-3 यूजर्स है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि पर्टिकुलर यूजर ने कौन सी एंट्री पास की है या फिर कौन सी एंट्री ऑल्टर की है। सो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो, ऑल्टर, कंपनी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे पासवर्ड के नीचे तो दिया है हमें यूज टैली ऑडिट फीचर, तो हम लोग इसे यस करेंगे। इसे यस करने के बाद ये स्क्रीन हमें सेव करनी है और कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सेव करने के बाद अगर सपोज आपको कोई आपका रिपोर्ट देखना है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं डे बुक देखना चाहती हूँ, सो डिस्प्ले डे बुक,
तो यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली कौन सी एंट्री कौन से यूजर ने पास की है। तो यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन में टैली ने हमें कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है शो एंटर एंड ऑल्टर बाय। सो इसे अभी हम लोग गेस करेंगे। गेस करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट आइडिया आएगा कि कौन सी यूजर ने मेरी कौन सी एंट्री पास की है। सो जो मेरा फर्स्ट यूजर है उन्होंने फर्स्ट एंट्री की है और जो सेकंड मैंने बनाया था उन्होंने सेकंड एंट्री पास की है। सो इससे कंप्लीट आइडिया आता है ऑर्गेनाइजेशन की कौन सा यूजर क्या कर रहा है एग्जैक्टली। ये हो गया ऑडिट फीचर। अभी इसमें अपना लास्ट ऑप्शन बचा है जो है ईमेलिंग। अभी ईमेल हमें कैसे करना है टैली से, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी मैं इनवॉइस सपोज ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से ओपन करते ही आपको टॉप में ऑप्शन मिलेगा ईमेल करके। ईमेल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। Just a moment. ईमेल करने के बाद यहाँ पे कुछ सर्टन इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं। लाइक आपका ईमेल का सर्वर कौन सा है, लाइक जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, तो वो सेम सर्वर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक जीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जीमेल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्वर एड्रेस आ जाता है ऑटोमेटिकली। देन नेक्स्ट अपना आता है यूज एसएसएल। इसे आपको आपके ईमेल के हिसाब से आपको वो ऑप्शन यस नो करना है। नेक्स्ट है यूज एसएसएल ऑन स्टैंडर्ड कोड। नेक्स्ट आपके यहाँ पे फ्रॉम यानी कि आपके कंपनी का नेम आता है, कौन से नेम से ईमेल जाना चाहिए कस्टमर को। फ्रॉम ईमेल आईडी, फ्रॉम ईमेल आईडी यानी कि आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी ईमेल आईडी से आप ईमेल करना चाहते हो वो। देन यूजर नेम फॉर ऑथेंटिकेशन में भी आपको सेम जो आपने ऊपर ईमेल आईडी मेंशन किया है वही सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट आता है पासवर्ड। सो पासवर्ड कौन सा डालना है, जो अपना ईमेल का पासवर्ड रहता है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है हमें, मैं अभी दिखा देती हूँ। फॉर्मेट में हमें मल्टीपल फॉर्मेट्स यहाँ पे टैली ने प्रोवाइड किए हैं। सो आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पीडीएफ में भेजते तो पीडीएफ में सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे उसका पेज का साइज है, वो पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, वो आप आपके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टू ईमेल एड्रेस। टू ईमेल एड्रेस यहाँ पे एक बेनिफिट रहेगा कि अगर सपोज आप पार्टी के मास्टर में उनका ईमेल आईडी पहले से ही एंटर करके रख रहे हो तो यहाँ पे आपको वो मैन्युअली डालने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि वहाँ पे भी आपका टाइम सेव होता है। सो यहाँ पे टू ईमेल आईडी में आपको वो पर्टिकुलर पर्सन का या फिर जो कस्टमर है उनका ईमेल एड्रेस डालना है। देन सीसी अगर किसी को आपको रखना है, बीसीसी में अगर किसी को रखना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट टैक्स इनवॉइस बाय डिफॉल्ट टैली में जो आता है, अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। ईमेल के साथ साथ कुछ एडिशनल मैसेज आपको देना है तो वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। एंड देन अटैच फाइल नेम, इसका नेम भी आप सेंड करके डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो ईमेल है वो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर को मेल हो जाएगा। सो इसमें आपका टाइम सेव होगा और इवन आप जो इनवॉइस जो कुरियर के थ्रू वगैरह भेजते हो उसमें भी आपके टाइम सेव हो जाएगा और इवन आपका पेज भी सेव होगा। सो अभी ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने यहाँ पे क्लियर किए हैं। सो अगर इसके थ्रू आप टैली में प्रॉपरली डेटा सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो तो आपका डेटा बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्योर रह सकता है और इवन आपका टाइम भी सेव होगा इसमें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर सपोज किसी को कुछ डाउट है यू कैन कनेक्ट अस। थैंक यू मिस मनाली, थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डाउट्स हमारा क्लियर हुआ होगा कि टैली एक सॉफ्टवेयर रख के हम कितनी चीजों को यहाँ पे एज ए बेस देख सकते हैं, अपना डेटा कितना सिक्योरली अपनी प्रोसेस पे ही रख सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स मैंने बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन इसी तरीके से किया है। सो नाउ लेट अस कॉल टू द अदर स्पीकर। सो मिस्टर भगवती, आर यू हियर? Yes, Miss Uma, I'm here. Hi, Mr. Bhagwati. Before you moving ahead, मैं एक announcement यहाँ कर देती हूँ. Request everyone to please update your questions. By the meantime, Mr. Bhagwati will address onto the topic.
तो आप इस टॉपिक के ऊपर बात कीजिएगा, तब तक क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लेते हैं सर. Yes. So what do you? Yeah. Hi, good afternoon. I'm Bhagwati here from Rajalakshmi Solutions Private Limited. So today's session is very informative and मैं ये बोलूँगा कि this is a very useful for every organizations. We are working day to day in the tally a lot of things in the terms of the accounting, in terms of the inventory and lot of other things. But we are not thinking about the कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ये जो चीजें हो रही है, इसकी सिक्योरिटी क्या है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं. और इसके अलावा एक तो सिक्योरिटी मतलब डेटा बैकअप, दूसरी सिक्योरिटी की मतलब ट्रांजेक्शन जो गलत हो रहे हैं वो किसकी नॉलेज की लैकिंग के कारण हो रहे हैं. मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी यूजर जानबूझ के गलती करेगा. मैं ये बोलूंगा कि मे भी कोई यूजर्स को एक ट्रांजेक्शन का आइडिया नहीं है, जिसने लोकल स्टेट में बेचने में CGST SGST की जगह IGST लगा दिया. तो इट्स अ लैक ऑफ द नॉलेज. तो कोई भी एक मैनेजमेंट के पास मतलब एक लेवल पर वर्किंग है, दिस इज अ प्रोसेस. सेकंड लेवल है कि उसकी मॉनिटरिंग, उसकी सिक्योरिटी और उसके ऊपर प्लानिंग. ये सभी चीजों को करने के लिए आज का जो सेशन है ये काफी फ्रूटफुल है, नॉलेजेबल नॉलेज बेस आपका अपडेट करने के लिए है और आपकी आई ओपनर लाइक दैट है कि आपको कहां पर क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए. अगर आप पहली बात एक्सीडेंट, जैसा कि मनाली और अश्विनी दोनों ने बोला, एक्सीडेंट बोल के नहीं होता. डेटा बैकअप मैं डेली लेता हूं, लेकिन क्या वो डेटा बैकअप जब मैं रीस्टोर करने कभी जाऊंगा एक्सीडेंट होने पे, क्या वो काम करेगा? क्या हमने कभी चेक किया है? 99% पीपल आर नॉट चेकिंग दैट. तो मैं ये बोलूंगा कि जब भी आप डेटा बैकअप लें, कभी कभी उसको अलग लोकेशंस पे, जैसा मनाली ने बताया, अश्विनी ने बताया, डिफरेंट लोकेशन पर रीस्टोर करके देखिए क्या वो डेटा बैकअप मेरा डेली प्रॉपर हो रहा है. दूसरे ऑप्शंस, अगर आप अपना डेटा ऑटोमेटिक करना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास हमने कई कस्टमाइज टूल्स बनाए हैं. आप अपने डेटा को क्लाउड के ऊपर देना चाहते हो, इसके लिए हमने कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाए. सेकंड मैं बात करता हूं हमारी जो इफिशिएंसी है एक काम को करने के लिए. जैसे ईमेल की मैं बात कर रहा था, ईमेल की मैं बात करूंगा कि एक ईमेल भेजने के लिए हमें एक PDF एक्सपोर्ट करना, एक PDF प्रिंट करना, उसके बाद में उसको अपना मेलबॉक्स खोलना, फिर उससे अटैच करके लेटर लिखना. दिस इज टू मच. टैली से डायरेक्ट भेज सकते हैं ऑन सिंगल क्लिक. आप अपना ऑपरेशन के साथ साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन यू कैन सेंड अ मेल एंड यू कैन एंजॉय योर वर्क. नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि ये जो चीजें हो रही है जहां पर आप लैकिंग ऑफ द नॉलेज, जहां हम देख रहे हैं ऑडिट फीचर कि भाई किसने क्या एंट्री करी है, इसको देख के होने वाला क्या है? एक्चुअली व्हाट वी वांट टू नो कि ये एंट्री किसने करी है. तो ये क्या जानना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये एंट्री में कोई अगर एरर है तो ये किससे हुआ है गलती. तो फिर हमारे लिए एक्शन प्लान क्या है? तो व्हाट इज एक्शन प्लान? दिस इज लाइक वी कैन मॉनिटर आवर पीपल कि हमें अपने लोगों को कहाँ संभाल के रखना है और उनको क्या क्या चीज का नॉलेज हमें अपडेट करना है और क्या क्या हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं. ये सभी चीजों को करने के लिए अगर हम इन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट प्रॉपर टैली में कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा काम काफी स्मूथ हो जाएगा और काफी स्मूथ हो जाएगा, टाइम सेविंग हो जाएगा, सिक्योर्ड हो जाएगा और मिसयूज नहीं होगा हमारे डेटा का. तो मैं आज की सेशन में यही बोलूंगा कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बियॉन्ड द रेगुलर वर्क. जो रेगुलर वर्क है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है जिस पर नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन की नजर नहीं होती है. तो आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और इसको फोकस करें. डेफिनेटली यू गॉट अ गुड रिजल्ट. आपके लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, आप मॉनिटर कर पाओगे, आप अपने डेटा को सिक्योर कर पाओगे और आप अपने बिजनेस को हेजल फ्री विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एंजॉय कर पाओगे. This is from my side, Deepa. Thank you very much. Hello. Yes. Hello. Yeah. So next, मैं आपको ये बोलूंगा कि इसके अलावा आपको कोई भी कॉन्टैक्ट्स, अगर कोई इसमें अगर इम्प्लीमेंटेशंस करने में if you have any questions, any doubts or any इम्प्लीमेंटेशंस में यू वांट टू नो कि कैसे करना है, क्या करना है, तो किससे कांटेक्ट करेंगे आप?
तो you are connecting with the account manager like राजलक्ष्मी की वहाँ पर मल्टीपल लोगों से आप कनेक्ट होंगे, आप किसी ना किसी के साथ बात करते होंगे. Once you talk with them, वो आपको हेल्प करेंगे. नेक्स्ट, आपके चैट बॉक्स में यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल नंबर्स हमारे फ्लैश हो रहे हैं. You can contact with me directly, and you can also contact with our support number, and you can mail, and you can also go through our YouTube channel. सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चीज, आज आपने सेशन देख लिया, you want to implement all those things, तो आप एंड ऑफ द डे पीस ऑफ द माइंड जब आप करने के लिए बैठोगे उस समय मे बी वो ऑफ पीक होगा, ऑफ टाइम होगा, तो कोई आपको हेल्प करने के लिए उस समय अवेलेबल नहीं होगा. तो यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन गो थ्रू दैट, यू कैन चेक द वीडियो, और वो वीडियो में जैसे जैसे मिस मनाली ने आपको बताया, आप उसको उसी प्रोसेस के साथ साथ आप उसको यूटिलाइज कीजिए और एंजॉय कीजिए. और definitely our team is there. You can contact with your account manager. They are communicating with you from Rajlakshmi Solutions. You can also communicate with our support center. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Bhagwati. It was pleasure hearing from you. All right, people, all togetherly देखो, अभी हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है स्पेसिफिकली टॉपिक के ऊपर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक यू ऑल आर लाइक much aware that Tally Prime is having many features here. So Tally Prime का सही से आपको यूटिलाइज करना ज्यादा जरूरी है. एंड एट द सेम टाइम आई वुड विश टू से हियर, मैंने जैसे पहले बताया, टॉपिक के बियॉन्ड फिर से हम इस टैली प्राइम के ऊपर डिस्कस करेंगे. सो नाउ द टॉपिक एंड्स हियर, डेटा सिक्योरिटी एंड कैपेबिलिटीज. सिंपली आई वुड विश टू से हियर कि यहाँ पे टैली में ही आपको एक डेटा सिक्योरिटी या फिर डेटा बैकअप का एक जरूर ऑप्शन है जो बहुत सारे कस्टमर्स को पता नहीं है. सो वी जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट एंड वी जस्ट वांटेड टू गिव एन अवेयरनेस टू ऑल द पीपल हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर यूजिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली एग्जैक्टली. वेल, इसके अलावा मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अपग्रेड योरसेल्फ, यस वी आर इनटू मेनी अदर सॉल्यूशंस आल्सो लाइक SAP ERP9 SAP ERP and Bittrex CRM and also Acronix and many other different sectors. So a complete solution provider. So we are here to help you and to support you. So do connect us at any time. So now, जैसे मैंने बोला, ये टॉपिक खत्म हो गया. Now we are stepping to the Tally Prime. Wow, it's really a fantastic and wonder software. As of now, I could say it is covering the complete scenarios and sectors, and it is trying to make a complete business solution for everyone. That is really a very great part. ये जरूर मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ. And at the same time, it's very important कि Tally Prime exactly है क्या, उसको हम कैसे प्रोसेस और प्रोसीजर्स पे लेके आ सकते हैं. So this is what we are going to discuss onto the session now. So Mr. Bhagwati, I again call you and request you to discuss on Tally Prime, and then we will just look for the question and answer the session. If there is any questions, you can just read it out. Yeah, I am very excited to this announcement कि कब मुझे बोला जाएगा कि भगवती जी आप आइए और बताइए टैली प्राइम के बारे में. This is really very actually let me just before, sorry to interrupt, before your discussion मैं एक बात जरूर ये बताना चाहती हूँ. We are not officially discussing anything here, but yes, we are just in support. We are just discussing you onto this. Officially, we will be doing the session on 9th of November 2020. This will be the official announcement. But yes, as of now here, मैं जरूर आपको ये बताना चाहती हूँ, हम एक कस्टमर को सपोर्ट के लिए और कस्टमर को इस प्रोडक्ट हमारे से कैसे आपको सपोर्ट मिलेगा, उन चीजों का एक्सप्लेनेशन हम ये करेंगे. बिकॉज द फादर ऑफ दैट प्रोडक्ट हैज टू फर्स्ट लॉन्च दैट प्रोडक्ट. दिस इज आवर प्रिंसिपल एंड बिजनेस के एथिक्स को हम लेके चलते हैं. इसीलिए इन डेप्थ प्रोडक्ट का डिटेल्स आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, प्रोडक्ट्स को हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट करने वाले हैं, ये सारी चीजें जरूर मैं आपको बताऊंगी. और मैं यहाँ देख सकती हूँ कमेंट्स में बहुत सारी लोग यहाँ विश कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच एंड इट इज रियली ग्रेट लाइक टू हैव योर विशेस एंड इट विल इंक्रीज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यस, चलो अब हम चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, आई मीन प्रोडक्ट के प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरफियरेंस के ऊपर. यस मिस्टर भगवती. Yeah, Deepa, thank you very much. And this is a really great movement. We are just announcing to our customer कि
how this things is change and movement is change and world is change. So in these changes, Tally, yes, Tally is also in the part of the changes, change of the world. तो आपने लास्ट 10 years से आपने देखा होगा वी आर यूजिंग tally.erp9. यार दिस इज अ रियली ग्रेट प्रोडक्ट. हमने इसके भी लॉन्च देखे हैं. हमने 2009-10 में जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, इससे रियली ग्रेट प्रोडक्ट्स हमने काफी एंजॉय किया. लेकिन समय के अनुसार काफी बड़ा चेंजेस आया टैली ईआरपी में. हमने काफी चेंजेस देखा, काफी फीचर्स को देखा. तो आज की डेट में यस, जो समय की मांग है, समय के हिसाब से काफी चीजों में चेंजेस आ गए हैं. तो अभी टैली ने आप लोगों की डिमांड के अनुसार, आप लोगों का जो ट्रस्ट है प्रोडक्ट के ऊपर, टैली के ऊपर, राज्यलक्ष्मी के ऊपर, उन सब चीजों को देखते हुए टैली ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है. दैट नेम इज टैली प्राइम. तो ये लॉन्च जो हो रहा है, दैट डेट इज 9th November 12:30. And after that, you can download this product from the Tally website, Tally official website. Yes, मैं आपको ये अभी तो नहीं बोलूंगा कि मैं इस प्रोडक्ट में क्या क्या है. ये तो मैं आपको डेफिनेटली अभी नहीं बोलूंगा. दिस इज अ रियली वेरी ग्रेट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस. तो आप उस प्रोडक्ट को जरूर आप एंजॉय करें, आप डाउनलोड करें. मैं बोलूंगा आप सबसे फर्स्ट डाउनलोड वाले लोगों में से होने चाहिए. तो यू डाउनलोड दिस प्रोडक्ट फ्रॉम 12:30 फ्रॉम 9th November. It means Monday, coming Monday. Okay. So what we will do, what Rajlakshmi will help you out in these sessions, in these products. तो कैसा होगा? What is a process? अब आप एक प्रोडक्ट नया आ रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट और काफी सिंपलिसिटी के साथ आएगा और इजी टू यूज होगा. काफी आराम से आप जो काम कर पा रहे थे ईआरपी में, और इजीनेस के लिए, आपके काम को और स्मूथ करने के लिए, आपकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और आपको एक अच्छा जो हमारी आदत होती है ना चेंज की, कि हम हमेशा वही ग्रीन या येलो मेनू देख रहे हैं, तो वो चीजों को चेंज करने के लिए डेफिनेटली एक अच्छा फील आएगा कि व्हेन वी यूज दिस प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा. नाउ वी विल शिफ्ट ऑन द प्रोसेसेस की हाउ वी विल कन्वर्ट योर लाइसेंसेस इन द tally.erp9 to Tally Primes. तो यस, हमने काफी चीजें तैयारी करी आपके लिए कि हाउ वी विल वर्क. तो जैसे आपका ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, तो आपका सबसे पहला चीज TSS वैलिड होना चाहिए. टैली में आपका TSS वैलिड होना चाहिए. अगर आपका TSS वैलिड नहीं है, हमने आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए हैं. आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए. आप राज्यलक्ष्मी के जिस भी अकाउंट मैनेजर के साथ आप बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप अपना TSS को अपडेट कीजिए. पॉइंट नंबर 2, TSS अपडेट के बाद में आपका सिस्टम पर आप ध्यान रखें, आपका विंडो 7 से ऊपर होना चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 से ऊपर होना चाहिए. मतलब विंडो 8, 9, 10 whatever जो भी है वो आपका होना चाहिए. विंडो XP में ये काम नहीं करेगा. एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ. नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगा, विंडो जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो 64 बिट होना चाहिए और 32 बिट नहीं होना चाहिए. ये 3 चीजों को आप जरूर चेक करें. इन 3 चीजों को चेक करें, तब आप इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर पाएंगे अपने सिस्टम में और आप इसको एंजॉय कर पाएंगे. अब आपका ये चीजों को चेक करने के बाद में यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस, वी आर देयर. और इसके अलावा अगर हमारी फोन लाइन बिजी है, एकदम भी मत घबराइए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है. यू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ऑल वीडियोज एंड प्रोसेसेस आपको वहां पर मिलेंगे. आप उस वीडियोज को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए. आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब चैनल जब आप सब्सक्राइब करोगे, आप हमारे सोशल मीडिया को देखोगे, आपको हर जगह प्रोसेसेस दिखेंगे, और वो प्रोसेसेस को आप बहुत अच्छे ढंग से देखिए. यू कैन डू योरसेल्फ. आपको किसी की भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है. टैली सीखने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है. टैली इंस्टॉल के लिए एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है. इतना ईज टू यूज प्रोडक्ट है. तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना डेटा को बैकअप रखते हुए आप उसको इंस्टॉल कीजिए और आप उसको लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं और यू एंजॉय योर लाइसेंसेस. और वो जो लाइसेंस जब नया इन्वायरमेंट में आएंगे टैली प्राइम के, तो उस केस में उसमें नई चीजें जो होगी उसके लिए भी आपको प्रोसेसेस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे. तो आप उसको भी वहीं से आप चेक कर सकते हो. और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर होंगे, यू कैन कनेक्ट विथ योर अकाउंट मैनेजर, जहां पर आपको मल्टीपल लोगों के साथ आप राज्यलक्ष्मी से कनेक्टेड हो. आप इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो जो मैंने अभी चैट बोट में डाला है, और आप अपने अकाउंट मैनेजर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो. दे विल हेल्प यू आउट.
तो आपको वो चीजों में वो हेल्प करेंगे। इन सभी चीजों के अलावा आपने YouTube चैनल देख लिया, आपने वीडियो देख लिया, आपने प्रोसेस देख लिया, यू वांट टू लर्न। अब आपको सिखाएगा कौन? अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो हु आर देयर? यस, वी आर देयर। हमने आपके लिए मल्टीपल सेशन पर डे, 4 सेशन हमने ऑलरेडी लाइक दिस सेशन हमने आपके लिए रखे हैं। तो आपके ईमेल के बॉक्स में, आपके ईमेल में वो पूरा का पूरा शेड्यूल कम्युनिकेट आपको कर दिया जाएगा, जो आपको मंडे के मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा। तो आप अपना मेल बॉक्स जरूर चेक करें। मैं आपको बोलूंगा मेल बॉक्स चेक करें, इनबॉक्स चेक करें और स्पैम भी जरूर चेक करें, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि मेल आपके इनबॉक्स में जाएगा या स्पैम में जाएगा। ये टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीजें हैं, तो आप स्पैम भी जरूर चेक करते रहें। तो वहां पर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखेगा कि आप किस समय कौन से सेशंस है, कौन से शेड्यूल है, किस दिन है। ये सभी सेशन आप कोई भी सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेम लिंक रहेगा, लिंक विल नॉट चेंज। आप वो लिंक को भी सेव करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर। हमारे प्राइम के जो भी ट्रेनिंग सेशन होने वाले हैं सेम लिंक पे ही होने वाले हैं, लिंक आपको एवरी टाइम चेंज नहीं होगा। तो you can also share this all information to your colleague, your partner, your friends, your families, ताकि वो लोग भी इसको और ज्यादा फास्ट यूटिलाइज कर सकें, कन्वर्ट कर सकें, एंजॉय कर सकें और ईज टू यूज कर सकें, अपनी इफिशिएंसी को बढ़ा सकें। और ये जो हिस्ट्री बनने वाली है, इस हिस्ट्री में हम बोल सकते हैं कि यार मैंने तो 9th को ही लॉन्च के डेट में इंस्टॉल कर लिया था। तो हम लोग जब एक नया फोन लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो वी आर एंजॉयिंग दैट, कि जब आया उसी दिन मैंने परचेज किया। तो वी फील दिस प्राउड मूवमेंट। हम इस प्राउड मूवमेंट के हम मैं बोलूंगा कि एक पर्सन वो होने चाहिए, पार्टिसिपेट करने चाहिए कि इस प्राउड मूवमेंट में मैं भी पार्टिसिपेट किया था और ये एक हिस्ट्री होगी। So yes, you can enjoy this product from Monday, and you can connect with us. We are there for your help, for your support, for your growth, for your hassle-free operations and increase your efficiency, all those things. So thank you very much. Thank you very much. थैंक यू सो मच मिस्टर भगवती। देखो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली क्या करना है, बेसिक चीजें जो ज्यादा जरूरी है वो मिस्टर भगवती ने आपको एक्सप्लेन किया है कि लैपटॉप हमारे कौन से कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, या साथ के साथ TSS कितना वैलिडेशन होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्कस हुई है। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको देखना ज्यादा जरूरी है, तो इन चीजों के ऊपर प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम हियर टू जस्ट टेल यू व्हाट इज द प्रोसेस। जैसे कि भगवती जी ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके उन्होंने बताया, लेट मी जस्ट टेल यू इन शॉर्ट व्हाट इज आवर प्रोसेस। See, for our AMC customers, we have a certain team which will specifically work onto it. We will give the complete comfortabilities specifically for AMC customers. And for non-AMC customers, मैं यहाँ आपको जरूर बताना चाहती हूँ, the same kind of preference, the same kind of importance is given for our non-AMC customers also. So non-AMC customers के लिए एक specific lines जो है हमने कनेक्ट करके रखा है, बल्कि अगर आप कॉल करोगे तो directly it will be connected to a particular team. So यहाँ पे AMC non-AMC customers को मैंने यहाँ पे divide करके आपको बता दिया है। Whether you are connected with our organization or to AMC or no, it really doesn't matter. आप जरूर हमें connect कर सकते हो। We have 2 different teams. We have segregated 2 different teams wherein they will be supporting you onto this. And specifically हमने और एक ग्रुप को भी यहाँ पे डेडिकेट करके रखा है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या फिर कुछ लोगों की ये एक्सपेक्टेशन है कि आप हमें डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर दे दीजिएगा, और उस अकाउंट मैनेजर जो है हमारे साथ सेटअप करने के से लेके पूरा इंस्टॉल करने के बाद ट्रेनिंग से लेके सारी उनकी टीम को भी ट्रेनिंग देना। ऐसे भी कोई कस्टमर्स ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी कुछ रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो दिस इज समथिंग लाइक आई वुड विश टू मेंशन यू हियर। हमने और एक ग्रुप सेग्रीगेट करके रखा है व्हिच इज स्पेसिफिकली फॉर those kind of people who really wanted the complete help. Completely उनको एक account manager assign किया जाएगा। But I would wish to mention here the AMC non-AMC customers की जो team है that is completely free. But if you are expecting a dedicated account manager for training as well as for the complete setup, it will be a paid service. और इस सारी चीजों के ऊपर
इन डेप्थ डिस्कशन जो है हम लॉन्च पे करेंगे एंड इन डेप्थ प्रोडक्ट के ऊपर जो फीचर्स है, जो भी सारी चीजें हैं उसके ऊपर सब हम लॉन्च पे ही करेंगे, बिकॉज वी वांटेड फर्स्ट द Tally solutions, the like father of Tally solutions has to launch the product, उसके बाद ही हम इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे कस्टमर्स, क्लाइंट्स के सामने एज वेल एज इनटू पब्लिक। बट यस, आपको सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब चैनल्स और ऑल सोशल मीडिया चैनल, फेसबुक चैनल, सब पे हमने डाल दिया है। और अभी आप देख सकते हो मिस्टर भगवती ने यूट्यूब चैनल का लिंक आपको शेयर किया है, आप यूट्यूब चैनल का लिंक जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिस्टर भगवती, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन टू द टॉपिक? Yeah, Miss Deepa, I have one additional information. अगर आप कोई भी कस्टमाइजेशन अगर आपने कोई भी TDL बनाया है या आपने कोई TCP अटैच करके रखी है, मेरा एक सजेशन होगा कि आप अपने Tally Prime को अपग्रेड करने से पहले Tally Prime की EXE में आप उस TCP को चला के अपने सैंपल डेटा के ऊपर जरूर एक बार चेक कर लें। उसके बाद ही आप अपने डेटा को लाइव डेटा पर उसको यूज करना चालू करें। दिस इज माई स्मॉल सजेशन, क्योंकि Tally Prime में भी आपका TDL किस लेवल पे कौन से फील्ड्स और कौन सी चीजों को, टेक्नोलॉजी को लेके किस हिसाब से बना हुआ है, ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। देयर इज चेंजेस इन द प्लेटफॉर्म आल्सो, Tally के प्लेटफॉर्म में भी काफी बड़े चेंजेस हैं, तो इसके कारण में भी वो TDL में थोड़ा काम करना पड़ सकता है, वो कस्टमाइजेशन में काम करना पड़ सकता है। तो वंस यू चेक दैट थिंग्स, ताकि आप अपने काम को कहीं भी स्टॉप ना हो गए, और आपका अगर कोई TDL बना हुआ है तो यू कैन कनेक्ट विथ योर अकाउंट मैनेजर एंड आप उनसे इस बारे में डिस्कस कीजिए, तो वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। इन टर्म्स ऑफ द दीपा, यू टॉक अबाउट द AMC कस्टमर, यस वी आर ऑलरेडी डेडिकेटेड वन टीम टू फॉर द only AMC कस्टमर। तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको, जो भी हमारे AMC कस्टमर्स हैं, उनके जो भी ईमेल आईडीज हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है आप लोगों ने, आपको उसमें भी एक मेल चला जाएगा। तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद पर्टिकुलर दैट टीम एंड यू कैन डाउनलोड योर प्रोडक्ट एंड यू कैन एंजॉय विद योर Tally Prime जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं। यू कैन यूज दैट प्रोडक्ट हेजल फ्री थ्रू आउट आवर एग्जिस्टिंग AMCs। थैंक यू। Thank you, Mr. Bhagwati. So I think let us end up the session. So we had come to the end of the session. So audience, thank you so much for your great and pleasure time here, Nali, and thank you, Mrs. Ashwini, for your great presentation here. Thank you, ma'am. All right, pleasure. And thank you so much, Mr. Bhagwati, for all the information which you provided here. And like a special thanks to all the audience. As I already said, it really matters. Without you, I think the session really feels incomplete. So मैं आपको जरूर अब बताना चाहती हूँ कि please do connect us and do subscribe our channels to know all the movements, all the offers which is existing in this pandemic scenario, as well as apart from this, every week we are launching one or a new offers onto specific products. So हम पर ऑफर नहीं दे रहे, so that is the reason every week we say we run on offer. Yes, we run on offer on it will be a rotational like products. So that's the reason हम आपको ये बता रहे हैं. So please stay connected and stay safe. See you all on 9th November with a new setup of Tally Prime, and yes, we are very excited, and I hope you are also equally excited onto this. So stay tuned and stay connected. Thank you so much and see you soon again. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you. Bye bye. Thank you all.